اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 2 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ کل کا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا کہ اس بیسک کے اندر پروگرام کریٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ پروگرام میں سٹیٹمنٹ لکھنے کا سینٹیکس کیا ہے، پہلے لائن نمبر آئے گا، پھر آگے سٹیٹمنٹ آتی ہے۔ اس کے بعد آج ہم نے پڑھنا ہے کہ پروگرام بنا کر ہم سیو کیسے کرتے ہیں، اسے لوڈ کیسے کیا جاتا ہے اور پھر ایگزیکیوٹ کیسے ہوتا ہے۔ ہاؤ ٹو سیونگ اے پروگرام۔ جب بھی سورس فائل بنتی ہے، سورس فائل کون سی؟ یہ جو ہم سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں بیسک لینگویج میں یا کوئی بھی ہائی لیول لینگویج میں، تو جب اس کی سٹیٹمنٹ بنا کر ہم سیو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سورس فائل بن گئی ہے۔ سٹیٹمنٹ بنا کر جب سیو کی جاتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ سورس فائل بن گئی ہے۔ تو سورس فائل بنانے کے بعد اسے سیو کیا جاتا ہے۔ کیوں سیو کرتے ہیں؟ تاکہ فیوچر میں اگر پھر ان سٹیٹمنٹس کی ضرورت پڑ جائے تو ہمارے پاس وہ محفوظ ہو، ہم دوبارہ انہیں استعمال کر سکیں۔ تو اگر ہم سیو نہیں کریں گے تو پھر فیوچر میں دوبارہ اگر ان سٹیٹمنٹس کی ضرورت پڑ جائے تو ہمیں دوبارہ سے ٹائپ کرنی پڑتی ہے۔ تو پروگرام کو اس GW بیسک کے اندر سیو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اس کے سٹیپس ہیں۔ سٹیپ نمبر 1 میں ٹائپ سیو کمانڈ یا کمانڈ پرامپٹ پہ سیو کی کمانڈ ٹائپ کریں، ڈائریکٹ سیو کی کمانڈ ٹائپ کریں اور پریس F4 کی۔ اب دو طریقے اس میں ہمارے سامنے آئے کہ پروگرام کو سیو کیسے کیا جاتا ہے۔ یا تو سیو کی کمانڈ ٹائپ کریں یا F4 کا بٹن دبائیں، دونوں میں سے ایک کام کریں تو سیونگ کا جتنا پروسیجر ہے وہ آگے کنٹینیو ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ پروگرام کو جو نام دینا ہے وہ نام ٹائپ کریں اور نام لکھا کس چیز میں جائے گا؟ ڈبل کوٹیشن مارکس کے اندر۔ ڈبل کوٹیشن مارکس کے اندر نام لکھا جائے گا۔ نام کون سا جو ہم اس سورس فائل کو دینا چاہ رہے ہیں۔ ABC ہو سکتا ہے، مائی فرسٹ پروگرام ہو سکتا ہے، کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ جو فائل ہم بنائیں گے، بناتے وقت جب ہم سیو کر رہے ہیں تو اس فائل کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ تو سیکنڈ سٹیپ میں ہم نام لکھیں گے اور نام ڈبل کوٹیشن مارکس میں لکھا جاتا ہے۔ تھرڈ میں پریس انٹر، انٹر کا بٹن دبائیں تو جو پروگرام ہم نے بنایا وہ سیو ہو جائے گا۔ بڑے شارٹ سے اور سمپل سے اس کے سٹیپس ہیں کہ بیسک کے اندر پروگرام کو سیو کیسے کیا جاتا ہے۔ یا سیو کی کمانڈ ٹائپ کریں یا F4 کا بٹن دبائیں تو آگے ہم نے کس نام سے پروگرام کو سیو کرنا ہے اس کا نام ٹائپ کریں اور نام ڈبل کوٹیشن مارکس کے اندر لکھا جاتا ہے۔ پھر انٹر کا بٹن دبائیں گے تو پروگرام سیو ہو جائے گا۔ تو یہ کویسچن شارٹ میں بھی آ سکتا ہے، MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ شارٹ کٹ کی کون سی ہے پروگرام کو سیو کرنے کے لیے۔ تو سیکنڈ فیز اس میں آئے گی لوڈنگ اے پروگرام۔ لوڈنگ اے پروگرام، پروگرام سیو ہو گیا ہے، پروگرام کو چلانے کے لیے اسے ہم نے لوڈ کرنا ہے۔ اب ہم نے 9th میں پڑھا تھا کہ ہر پروگرام چلنے سے پہلے مین
जब प्रोग्राम को सेव किया, ये तो हार्ड डिस्क में सेव हुआ, तो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ प्रोग्राम डायरेक्ट नहीं चल सकता। जब हम उसे ओपन करने की, चलाने की कोशिश करेंगे तो चलने से पहले उसने मेन मेमोरी के अंदर लोड होना है। लोड होगा तभी चलेगा, अगर लोड नहीं होगा तो प्रोग्राम नहीं चल सकता। तो प्रोग्राम को लोड कैसे किया जाएगा? या लोड की कमांड टाइप करें, टाइप लोड कमांड, और प्रेस F3, या लोड की कमांड टाइप करें, या कौन सा बटन प्रेस करें? ऊपर जो फंक्शन कीज में F3 का बटन होता है वो प्रेस करें। सेकंड, नाम टाइप करें, जिस प्रोग्राम को, जिस फाइल को हमने ओपन करना है उसका नाम लिख रहे हो। नाम किस में लिखा जाएगा? डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर। ऊपर भी यही सारा प्रोसीजर है, नीचे भी यही आ गया कि हमने नाम टाइप करना है, क्योंकि नाम बताएंगे तो तभी वो उस फाइल को लोड करेगा। नाम नहीं देंगे तो उसे क्या पता किस फाइल को हमने लोड करना है। तो नाम टाइप करेंगे डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर। थर्ड स्टेप पे हम एंटर का बटन दबाएंगे तो प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दो बातें और कि नाम जो हमने इधर टाइप करना है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि मैंने अगर किसी का कांटेक्ट नंबर सेव किया तो जब सर्च में जाकर मैं फाइंड करूंगा तो पेट प्रॉपर नाम दूंगा तभी उसका कांटेक्ट नंबर खुल के सामने आएगा। लेकिन अगर मैं स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, स्पेलिंग में गलत लिख देता हूँ तो उसका नाम सामने कांटेक्ट नंबर ओपन होके नहीं आएगा। तो यहाँ पर यही कहानी है, हमें जिस प्रोग्राम को लोड करना है उसका एक्यूरेट नाम मैं लिखूंगा तभी वो ढूंढ कर उसे लोड करेगा। अगर नाम मैंने गलत लिख दिया, नाम मैंने गलत लिख दिया तो वो उसे लोड नहीं करेगा, एरर मैसेज जनरेट करके दे देगा। फिर बेसिक के अंदर जब प्रोग्राम सेव होते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? जितने भी 9th में चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था फाइल एक्सटेंशन का, उसमें ये था मसलन MS वर्ड की फाइल बनती है तो 7 डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन सामने आती है DOC लिखी हुई। इसी तरह कोई ऑडियो फाइल है तो उसका फाइल का नाम होता है फॉर एग्जांपल ABC, आगे लिखा हुआ आता है .mp3। तो ये mp3 क्या है? फाइल की एक्सटेंशन है। 9th में डिटेल से हमने ये टॉपिक किया था। तो बेसिक में जब प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम को नाम देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया प्रोग्राम, उसकी एक्सटेंशन होगी .bas। बेसिक में जो भी प्रोग्राम बनाकर हम सेव करते हैं उसकी एक्सटेंशन क्या हो जाती है? उस फाइल की जो बनाकर हम सेव करेंगे .bas। तो ये प्रोग्राम को लोड करने का प्रोसीजर है। थर्ड है एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट का मतलब होता है प्रोग्राम को चलाना। तो प्रोग्राम तभी चलेगा जब पहले मेमोरी में लोड होगा, लोड होने के बाद प्रोग्राम चलता है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए या रन की कमांड टाइप करें, टाइप रन कमांड, या शॉर्टकट की F2 प्रेस करें। सेव करने के लिए F4,
लोड करने के लिए शॉर्टकट की F3 और रन करने के लिए शॉर्टकट की F2। तो जब रन की कमांड हम टाइप करेंगे तो जो प्रोग्राम मेमोरी में लोड हुआ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो प्रोग्राम मेमोरी में लोड हुआ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा आज का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम, बेसिक लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कल एक पैराग्राफ मैंने पढ़ाया था, क्रिएट एंड सेव अ प्रोग्राम, उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल एक बात जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो पहला पॉइंट है कि एवरी स्टेटमेंट must begin with a line number। जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, कल हमने कमांड और स्टेटमेंट का भी टॉपिक पढ़ा था, उसमें स्टेटमेंट की डेफिनेशन के अंदर मौजूद था कि स्टेटमेंट जब भी हम लिखेंगे उसके साथ लाइन नंबर लिखना मस्ट है। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 10 इनपुट A, B। अब ये लाइन नंबर है, ये आगे स्टेटमेंट है। कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं होगी जिसके पीछे लाइन नंबर ना हो। तो जितनी भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, उसके पहले लाइन नंबर का होना मस्ट है। फिर सेकंड पॉइंट, जब प्रोग्राम को हम एंड करें तो एंड स्टेटमेंट साथ लिख दें। जब प्रोग्राम को हम एंड करें तो एंड स्टेटमेंट एंड पे लिख दें। फिर कहता है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि प्रोग्राम के एंड पे हम लाजमी लिखें एंड। मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है कि हमने एंड लाजमी लिखना है, लेकिन अगर लिख दे तो कहा जाता है ये अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है। फिर रिपीटिशन ऑफ लाइन नंबर is not allowed। अब लाइन नंबर की रिपीटिशन क्या है? फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में बना रहा हूं, लाइन नंबर में दे रहा हूं 10, 20, 30, 40, 50, फिर 10 लिख दूं। वो कह रहे हैं रिपीटिशन ऑफ लाइन नंबर इज नॉट अलाउड। हम लाइन नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते। अगर कोई भी लाइन नंबर रिपीट होगा उसका नुकसान क्या होगा? दोनों लाइंस पे जो स्टेटमेंट्स होंगी वो हमारी जाया हो जाएंगी। दोनों लाइंस पे जो स्टेटमेंट होंगी वो हमारी जाया हो जाएंगी। चौथा पॉइंट, कल भी मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर 2 स्टेटमेंट्स लिखनी है, 2 स्टेटमेंट्स ऑन 1 लाइन, इन दोनों स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए जो सिंबल यूज होगा वो कॉलन का सिंबल यूज होगा। अगर एक लाइन पे हम 2 स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, एक स्टेटमेंट ये लिख दी, फिर आगे एक और लिखनी है, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मैं बीच में जो सिंबल यूज करूंगा वो कॉलन का सिंबल होगा। फिर एक और पॉइंट, ये भी कल हम पढ़ चुके हैं, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की जो सीक्वेंस है वो कैसे होगी? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होती है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? ये कहते हैं कि प्रोग्राम की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मैटर नहीं करती। फिजिकल अपीयरेंस क्या? फॉर एग्जांपल मैंने पहले लिख दी लाइन नंबर 5 पे स्टेटमेंट लिखी, फिर 3 पे लिख दी, फिर 10 पे आई, फिर 2, फिर 1, फिर 4, इस तरह से लिख दी। अब फिजिकल अपीयरेंस तो ये कह रही है कि पहले लाइन नंबर 5 चलेगा, फिर 3 नहीं।
प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, जब हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? सबसे छोटी वैल्यू पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। तो ये प्रोग्राम कैसे चलेगा? पहले लाइन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर लाइन नंबर 10। तो प्रोग्राम की जो फिजिकल अपीयरेंस हमें सामने नजर आ रही है लाइन नंबर्स की, वो मैटर नहीं करेगी, बल्कि चलेगा कैसे, किस तरतीब से? असेंडिंग ऑर्डर से। किस ऑर्डर से? असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसे A to Z भी कहते हैं, या 0 to 9 ऑर्डर, A to Z या 0 to 9। सिंपली समझाने के लिए मैं बताऊं तो आपके मोबाइल की जो फोन बुक है वो असेंडिंग ऑर्डर में, पहले A वाले नाम, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले, एंड सो ऑन। और अगर न्यूमेरिक फॉर्म में देखा जाए तो मैंने लिखा 0 to 9, मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो पहले आएगी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, एंड सो ऑन, आगे चलती जाएगी। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। इन पॉइंट्स की रीडिंग आपने बुक से लाजमी करनी है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने सिंपली एक दो वर्ड्स लिखे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।